Okay, hi everyone. Good evening. Welcome back. So what we are going to cover today is, I think in previous class we covered velocity of image as seen from mirror, velocity of image as seen from someone sitting on ground, and we studied kind of relative motion, relative movement, relative position of object with respect to image and mirror, right? So now we'll work on idea as to how many images will be formed when you're using two mirrors. So suppose if you're using two mirrors in parallel, then how many images will be formed and where exactly, what will be the position of image for each successive reflection, right? And we'll also check if two mirrors are at some angle, let's say inclined with by 30 degree to each other, right? So we'll see how many images will be formed in those cases as well. So let's start with this new part. So basically, we are going to study images formed by two plane mirrors. Okay. And let's start with question, because we already know for basic case the distance and the angle of incidence and angle of reflection will be same, right? So all those basic things you already know. So let's take an example. Suppose you have a parallel mirror, okay, like this, and it's a long parallel mirror. और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक angle of at some angle there is a ray incident at leftmost edge, है ना, एकदम मतलब almost edge पे, obviously edge के थोड़ा अंदर होना चाहिए, otherwise reflection कैसे होगा, right? But you got the picture. So let's say angle of incidence है ना for the lower mirror or for the bottom mirror is basically 45 degree. तो 45 degree पे क्या हो रहा है, आपका light आ रहा है, and let's assume this length to be 5 centimeter only, not very long, and this width to be 1 centimeter. Okay. So the question is, what will be total number of reflection from the mirror? So we need to find total number of reflection from the mirror. ठीक है. तो सॉल्व करने का लॉजिक क्या, बहुत सिंपल. एक तो आप एक मैनुअल अप्रोच है कि आप बेसिकली हर केस के लिए हर रिफ्लेक्शन के लिए विल ड्रॉ 45 डिग्री पे ना. कैसा होगा इसमें रिफ्लेक्शन, आपको 45 डिग्री पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो करना है ना. दिस विल बी 45 डिग्री, फिर वहां से आपको इस तरह से 45 डिग्री पे रिफ्लेक्शन करना है, एंड देन अगेन 45 डिग्री पे रिफ्लेक्शन. यहाँ पे क्या होगा, सारा एंगल आपका सेम ही है, राइट? somebody said the answer is 5, maybe it is, I don't know. So let's see. So how will we exactly solve? So we need to find some method, है ना, which gives us some idea like आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ रहा है तो कितना लेंथ वो एक्चुअली कवर कर रहा है. ठीक है, that is what we need to figure out, right? So if this is first reflection, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कितना लेंथ कवर किया. इफ यू लुक केयरफुली, दिस इज 45 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, सो दिस विल बी अगेन 45 डिग्री, ठीक है. विच मीन्स अगर ये मिरर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ विल आल्सो बी 1 सेंटीमीटर. ठीक है. सो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड यू गेट 1 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ covered by light, right? So second reflection में क्या हो जाएगा, this is second reflection, this is second reflection. तो second reflection में क्या हो जाएगा, आपका एक और सेंटीमीटर और लाइट कवर कर लेगा, right? Like this distance will be 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है. So if that is the case, then number of reflection, हम लोग समझ चुके हैं कि एक रिफ्लेक्शन होने पे क्या हो रहा है. So number of reflection क्या है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं. You can write 5 सेंटीमीटर over 1 सेंटीमीटर. ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है आपका, और हर बार हर एक रिफ्लेक्शन पे 1 सेंटीमीटर कवर कर रहा है लाइट राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट काइंड ऑफ. तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट. फर्स्ट रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे काउंट नहीं किया. ठीक है, इसको नोट करो किड्स फास्ट. हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट हो, राइट. सो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा, क्या होगा, आपको ज्योमेट्री बनाकर देखना पड़ेगा कि एक रिफ्लेक्शन में है ना, इट्स लाइक
जीरोथ रिफ्लेक्शन यानी जो बिगिनिंग का पार्ट था एंड द फर्स्ट रिफ्लेक्शन है उसके बीच में कितना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्या केस उसमें आए, राइट। मुझे थोड़ा फास्ट नोट करना है और जैसे नोट क्या हो जाए चैट पे रिप्लाई कर देना। Okay, awesome. So I'm assuming everyone has noted it, right? So let's look at one more problem. So depending on behavior of reflection between two parallel mirrors, sorry, two mirrors inclined at some angle, they might ask you to find some different reflection. Like angle क्या होगा दो mirrors के बीच में अगर reflected light parallel है या फिर reflected light incident है क्या opposite, it depends, right? There can be several types of combination. So इस question में क्या है फिलहाल the setup is very simple. तो आपके पास दो you have two mirrors, ठीक है, और उसमें let's say angle is maybe theta, है ना, और they've asked you to find value of theta और incident angle is parallel to the first mirror, so maybe we can write it as m1, है ना, ये mirror 1 हो गया, ये mirror 2 हो गया, तो आपका incident light जो है वो ऐसा है, ठीक है, और इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू ड्रॉ, है ना, मैं हाथ से डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये डिजायर्ड रिजल्ट आएगा ही नहीं, बट स्टिल लेट्स गिव इट अ ट्राई। आपको क्या करना है, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो मिरर M2 के पैरेलल शो करना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हाथ से बना रहे हैं तो हमारे पास फ्रीडम है, राइट, तो पहले ही मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट बना लिया, ठीक है। सो मान लो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे आया होगा, ठीक है, ये मैं अगर हाथ से डायग्राम बना के तो मैंने फोर्सफुली जबरदस्ती ऐसा एक सेटअप बना दिया। So what we need to find is angle theta so that incident ray which is parallel to M1, है ना, तो जाने वाला रे which is M2 is parallel to M2, तो उसमें आपका थीटा क्या आएगा, राइट। सो क्वेश्चन इज फाइंड थीटा, ये ट्राई करो सब लोग। if final ray is parallel to M2, ठीक है, ट्राई करो बच्चों, बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा। फास्ट छोटा सा ज्योमेट्री आपको लगाना है एंड इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या रिजल्ट बच्चों बताओ फटाफट, कितना होना चाहिए एंगल थीटा सो दैट फाइनल रे इज पैरेलल टू M2, गिवन जो आने वाला रे वो ऑलरेडी M1 के पैरेलल। फास्ट किड्स, चलो ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। इफ इंसिडेंट रे, है ना, ये ग्रीन कलर का जो है वो अगर वो M1 के पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी थीटा, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सो इट मींस ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज ये परपेंडिकुलर, राइट, सो दिस एंगल विल बिकम
90 माइनस थीटा। अब देखो स्पेस तो बहुत कम है बट इसे मैनेज करना है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा है ना, विच मीन्स ये एंगल कितना आएगा थीटा आएगा, राइट। अब ध्यान से देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो इक्वल होता है ना? किसी ने आंसर 60 बताया विच इज करेक्ट, ठीक है 60 है। अब आपका जाने वाला जो रे है वो क्या है M2 के पैरेलल है ना, विच मीन्स ये एंगल आपका क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है ना, तो ये क्या हो गया आपका थीटा हो गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रायंगल के अंदर यू हैव 3 एंगल्स एंड सम क्या आपका 180 डिग्री, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फास्ट। आराम से नोट कर लो सब लोगों ने। ओके सो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन हैज नोटेड इट, ठीक है। अब एक केस देखते हैं जहां पर हमारे पास क्या है जो मिरर है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, ठीक है, व्हिच इज लाइक दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वहां पर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि जो भी ऑब्जेक्ट उन दोनों के बीच में लोग रखेंगे हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म, है ना। ये हम लोग ड्रॉ करके ना एक बार खुद से बनाकर देख लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट विल हैव अ सिंपल फॉर्मूला, हम लोग उसी को यूज करेंगे। So what we are going to cover is number of images formed by two inclined rays, ठीक है। तो ये हमें एक बार खुद से बना के देखना है। सो लेट मी ड्रॉ, मे बी यू कैन यूज, चलो ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। सो इस तरह से मान लो एक मिरर है, ठीक है, और एक दूसरा मिरर क्या अपने ऐसा रे डायग्राम खुद से बना के ट्राई करेंगे, विल सी इफ वी कैन ड्रॉ इट। देखो एक पॉइंट से तो क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएगी, राइट, but we are taking only two to make sure our diagram doesn't look messy, right? So I don't know, maybe यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल देता है, ठीक, और यहाँ से क्या करना है हमें इमेज बनाना है। सो दिस इज लेट्स से मिरर M1 है ना, और दिस इज मिरर M2 और यू कैन से मिरर 1 मिरर 2, ठीक है। अब यहाँ पर यू कैन टेक एनी टू रेस, अब रैंडम कुछ भी, अब मान लो मैं ऐसा रे ले लूंगा तो वो रे उधर चला गया, वो रिफ्लेक्शन आया नहीं उसका, ना M1 से आया ना M2 से आया, तो दैट रे इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन आवर इमेज फॉर्मेशन, सो इट इज नॉट हेल्पिंग, ठीक है। सो मे बी कुछ ऐसा रहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एक्चुअली, बट ठीक है, एक रफ डायग्राम, सो इट डजंट मैटर। मान लो ऐसा आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड है इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, ये गेस करके मैं बना रहा हूँ, सो मे बी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, एंड दूसरे वाले का जो रिफ्लेक्शन है मे भी कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्पेस काफी कम बच गया, ठीक है, बट फीलिंग को समझो, फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मान लो आप ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो आगे जाके ये नहीं मिलेंगे, फैल रहे हैं काइंड ऑफ डाइवर्जिंग रेज, तो आपको क्या पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आप इसे पीछे एक्सटेंड करो। वैसे हमें कॉन्फिडेंस है ना, हमें पता है ऑलरेडी कि इमेज कहाँ बनने वाला, सो एक रफ डायग्राम में यहीं पे बनाता है, तो ये आप पीछे एक्सटेंड करो इसको, ठीक है, और इसको पीछे एक्सटेंड करो, अंडरस्टैंड। हाथ से बना रहे डायग्राम तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी ना, बट इट्स फाइन। सो ये आपका इमेज बना, मे बी वी कैन राइट इट एज आई प्राइम, फर्स्ट इमेज ना, कैसे बनाइए, मिरर 1 से रिफ्लेक्शन होकर बना, ठीक है। और येलो कलर में से इस पूरे स्पेस को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं,
अब ये जो रेड रिफ्लेक्टेड रे था वो तो वहां पे रुकेगा नहीं, राइट, ये यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, सॉरी, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, राइट, एंड यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, राइट, सो मे बी कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होके जाएगा, दिस एंगल इज ग्रेटर, ये एंगल अगर बड़ा आएगा तो ये छोटा आ जाएगा आपका, ये एंगल बड़ा, ये छोटा हो रहा है, सो मे बी कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका रिफ्लेक्टेड रे है। आप उसको एक्सटेंड करोगे तो पीछे तो क्या होगा, आपका एक और इमेज बनेगा। वैसे आपका कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो उसका इमेज अगर M2 मिरर बना रहा है तो M2 मिरर इसी लाइन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन आप ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करो M2 के ऊपर, राइट, सो ये डायग्राम जो है ना, काफी डायग्राम के साथ काफी धोखा हो चुका है ना, लेट मी ड्रॉ अगेन ना, लेट्स ड्रॉ अगेन, ये ऑफ कोर्स रूलर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और हाथ से ड्रॉ करना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बट स्टिल से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एंड उसका इमेज कैसे बनेगा, पहले हम लोग इमेज ही बना लेते हैं, उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। उसका इमेज कैसे बनेगा, अगर मिरर M1 इमेज बना रहा है और अगर मिरर M2 इमेज बना रहा है, M1 अगर डायरेक्ट इमेज बना रहा है तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन आप ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करो मिरर पे, और जितना डिस्टेंस है रफली उतना ही डिस्टेंस पे आप मार्क करो, ये आपका इमेज होगा, ठीक है। एंड अगर M2 इमेज बना रहा है तो वो इमेज आपका ऐसा बनाएगा, इस तरह से ऑब्जेक्ट से M2 पे पर्टिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो, और जितना लेंथ है ना इतना ही लेंथ रफली यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, दिस विल बी इमेज। अब आपको ऐसे सोचना है कि अगर M1 ने ऑब्जेक्ट O का इमेज I बनाया, ठीक है, तो ये I जिस भी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से I इमेज बन रहा है और मे बी I प्राइम इमेज बन रहा है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब M2 पे जाएगा तो फिर क्या होगा, M2 उस I प्राइम का एक इमेज बनाएगा, ठीक है। एंड अगर M2 I प्राइम का इमेज बना रहा है तो आपको दिमाग में ऐसे मेथड यूज करना है, फॉरगेट अबाउट ओ ऑब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट I, आप भूल जाओ सब, आपके लिए क्या है, लाइट कहां से आ रहा है, I प्राइम से लाइट आ रहा है, और I प्राइम से अगर लाइट आ रहा है तो M2 मिरर के लिए I प्राइम आपका काइंड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट है, और न्यू ऑब्जेक्ट है विच मीन्स M2 को ऐसा लगेगा कि ओके मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस डिस्टेंस पे ना, मे बी हम लोग A B लिख देते हैं, तो कितने डिस्टेंस पे, B डिस्टेंस पे है एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, वो क्या इमेज है, लेकिन M2 को क्या लगेगा कि ओके सर वी हैव वन न्यू ऑब्जेक्ट विच इज I प्राइम, और वो B डिस्टेंस पे, तो मैं उसका इमेज कहां बनाऊंगा, B डिस्टेंस पीछे बनाऊंगा, राइट, सो वो यहां कहीं पर B डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है, सो दिस विल बी I डबल प्राइम, है ना। अब यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। सो मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लिया, ठीक है, ये पीछे एक्सटेंड करके या दो रेज लेना पड़ेगा आपको, राइट, सो मैं भी एक रे हम लोगों ने ऐसे ले ली और एक रे हम लोगों ने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो ये एक्सटेंड करने पे क्या होगा, आपका बनेगा इमेज I प्राइम, है ना। लेकिन ये जो दो रेज अभी आगे बढ़ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद आगे बढ़ रही है, क्या होगा, ऐसे आगे जाएगा और ये हिट करेगा मिरर को, राइट, सो ये आपका आगे जाएगा और ये हिट करेगा मिरर को, कौन से मिरर को, M2 को हिट करेगा, एंड बिकॉज ये हिट कर रहा है वहां से इसका एक और रिफ्लेक्शन होगा, राइट, और ये रिफ्लेक्शन है ना ऐसे रिफ्लेक्शन जाएगा, और अगर आप रेड वाले की बात करोगे तो रेड से आपका कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन जाएगा, ठीक है। तो इन ऑफ रिफ्लेक्टेड जो सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो एक्सटेंड करने पे क्या होगा, यहाँ पर कहीं आपको मिलता हुआ दिखेगा, गिवन आप स्केल यूज कर रहे हो, ठीक है। सो
पहले रिफ्लेक्शन किस सरफेस को, M1। तो M1 को क्या लगा कि ओके हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O और मुझे उसका इमेज बनाना है। तो M1 ने कहा इमेज बनाया, नीचे इमेज बनाया A डिस्टेंस पे, दैट इज परफेक्टली फाइन है ना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं यूज किया हम लोग। लेकिन क्या वो इमेज रे गायब हो गया? नहीं, वो रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रहा है, M2 पे जा रहा है। तो M2 फिर M2 को रे कहां से मिल रहा है ना, M2 के लिए ऑब्जेक्ट नहीं, आप O को भूल जाओ, ठीक है। M2 को इस पर्टिकुलर डायग्राम में रे कहां से मिल रहा है, आई प्राइम से आता हुआ। कोई भी अगर M2 पे खड़ा होगा तो उसको क्या दिखेगा कि ओके आई प्राइम से दो रेज ऐसे निकलकर सामने मेरे फेस पे आ रही है, राइट। तो M2 के लिए क्या हो गया, आई प्राइम एक ऑब्जेक्ट बन गया और उस ऑब्जेक्ट का इमेज आप कहां बना रहे हैं, आई डबल प्राइम पे बना रहे हैं, राइट, लेफ्ट साइड में आप बना रहे हैं, ठीक है। और ये कहां से, ये दो इमेज मिले हमें, आई प्राइम एंड आई डबल प्राइम, ये हमें कहां से इमेज मिल रहे हैं, बिकॉज ये इमेज हम लोगों ने ग्रीन और रेड कलर का जो लाइट रे डायग्राम में ड्रॉ किया उससे मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लाइट ऐसे लें कि जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि डिलीट कर दूंगा मैं क्योंकि पूरा हौच-पौच हो गया। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट, अगर मान लो आप डायरेक्ट रे M2 पे लेते हैं तो फिर क्या होगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट O एक ऑब्जेक्ट है और उसके लिए वो इमेज क्या बनाएगा, I। फिर यहां से देखो ये बच्चों रिफ्लेक्ट होके आएगा M1 पे गिरेगा, तो M1 को लगेगा कि ओके इस I का मुझे इमेज बनाना, और वो I का इमेज कहां बनाएगा, यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, I का इमेज कहां बनाएगा, M1 नीचे बनाएगा। कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस क्या मिलने वाला है आपको, सेम मिलने वाला है, राइट। दिस डिस्टेंस विल बी A ना, ये A डिस्टेंस होगा, राइट। सो ये भी डिस्टेंस क्या होता है, A हो जाएगा, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे देखना चाहते हैं ना। तो अगर O से आप एक लाइट ले रहे हैं, M1 पे गिरा एंड देन M2 पे गिरा, तो आपको कौन कौन सा इमेज मिल रहा है, आई प्राइम और आई डबल प्राइम। अगर आप O से एक ऐसा लाइट ले रहे हैं जो कहां गिर रहा है, M2 पे गिर रहा है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर M1 पे आता है, तो फिर आपको दो इमेज मिलेगा, एक मिलेगा आपको I जो O से डायरेक्ट M2 ने बनाया, और फिर I को देख के, क्योंकि I का जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो इधर आ रहा है ना, जो मैंने डिलीट कर दिया अभी, वो किस पे आने वाला है, M1 पे आएगा। तो M1 को लगेगा कि ओके I एक नया ऑब्जेक्ट है, एक न्यू ऑब्जेक्ट है और मुझे उसके लिए क्या करना है, एक इमेज बनाना है। तो वो उसका इमेज बनाएगा नीचे, जो उसी जगह पर बनेगा जो पहले केस में या फिर जो अभी करंट केस में हम लोगों ने कंसिडर किया था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन आप M1 पे लेते हैं और सेकंड रिफ्लेक्शन आप M2 पे लेते हैं तो आपको दो इमेज मिल रहा है, आई प्राइम एंड आई डबल प्राइम। बट अगर आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 पे लेते हैं एंड सेकंड रिफ्लेक्शन M1 पे लेते हैं तो आपको इमेज जो मिलेगा वो मिलेगा I और I डबल प्राइम। बट इन शॉर्ट I डबल प्राइम वाला जो लोकेशन है वो काइंड ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। सो इफ समबडी आस्क कि सर कितना इमेज यहाँ पर बनेगा, तो यस आपको यहाँ पे 3 इमेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड यू शुड नो, है ना, ये रे डायग्राम क्या आपको थोड़ा सा बेसिक ट्राई करने आना चाहिए। ऑब्वियसली अब जितने ज्यादा रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे अगर मिरर्स के बीच में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मान लो मिरर्स छोटा है, कम एंगल है दोनों के बीच में, राइट। तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन मल्टीपल, फर्स्ट रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, दिस वाज फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दिस वाज सेकंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लाइट भेज दिया ना, इस तरह से लाइट, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा था कहीं पर, वो लाइट गया ऐसे, वो ऊपर मिरर नीचे मिरर, तो वहां से टकरा के नीचे आएगा, फिर ये टकरा के नीचे जाएगा, फिर इधर जाएगा, राइट। सो मल्टीपल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे। लेकिन कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री। और उसमें से एक इंटरेस्टिंग जियोमेट्री अगर आप देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये जो सेंटर है ना, जिसको अब सेंटर को तो कुछ नहीं बोल सकते, फिलहाल सी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप ये नोटिस करोगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट इमेज सारे के सारे क्या है ना, एक सर्कल पे लाई करते हैं। इस तरह से एक सर्कल आप इमेजिनरी बनाओगे तो क्या होगा, उस सर्कल पे ये काइंड ऑफ लाई करे। बट ये मैं डायग्राम नहीं रखना चाहता हूँ, सॉरी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिक रिफ्लेक्शन यूज करके 2-3 डायग्राम्स आपको बनाने के लिए आना चाहिए, स्केल लेके आपको ट्राई करके देखना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, ज्यादा नंबर ऑफ इमेज के लिए ऑब्वियसली विल बी यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि वो काफी ऑसपॉस जाता है। यहीं पर हम लोगों ने कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया। एक और हम लोग बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट O से M2 पे रिफ्लेक्शन लेते हैं, M2 से फिर M1 पे लेते हैं, तो फिर काइंड ऑफ कंप्लीट डायग्राम होता है। बट ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है। बट एनीवेज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट आवर मोटिव, ठीक है। सो नोट करो किड्स फास्ट।